So, hey guys, welcome to the episode 5 of That's My Role. If you are new to the series is basically where we're covering all the kind of possible career options by the professionals to actually help the job seekers, the undergraduates, and the people who want to switch their careers. So, for today, we have the role of security consultant, and for that, we have Vishal with us, who has done masters in cybersecurity and is presently working with one of the big four, that is EY, and he'll help us understand how you can get into this field of cybersecurity and get started the career in this particular field. Thank you so much, Vishal, for actually accepting this invite for That's My Role. I'm so glad and super excited to do this podcast with you. Thank you, Mansi, for inviting me, and I'm really excited to for this interview. And I really appreciate the kind of work you are doing for people who really need some guidance in various roles. Right. I've seen your profile, and you actively sharing knowledge with people, specifically for the freshers. Right. So I really appreciate the things you are doing for the community. Thank you so much. Thank you. So let's get started with this podcast, and let's get started with learning about how can we enter into the field of cybersecurity. So Vishal, as आपने बहुत पहले you have done this this masters in cybersecurity, and basically I just wanted to know that how did you figured out, first of all, that okay, I have to do something in the field of cybersecurity? Is there any story kind of behind that, or yes, story है, but बहुत मोटिवेशन वाली नहीं है, बहुत फनी स्टोरी है. Yeah, so we would love to hear. We would love to hear that. हाँ, so like मैंने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा था मैं 12th तक, right, फर्स्ट से लेकर 12th तक, and then I opt for engineering. पहले से ही पता था कि engineering करनी है, right, और engineering इसलिए करनी थी क्योंकि मैंने एक मूवी देखी थी रावण मूवी देखी थी, तो मेरे को लगा यार ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल बता, तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि हाँ चलो, ऐसा मतलब कुछ लेना देना कुछ नहीं था, टेक्निकल कुछ पता नहीं था उस टाइम, बट हाँ लगा कि चलो इसी में घुसना है, इंजीनियरिंग ही करनी है और आईटी कंप्यूटर साइंस में ही जाना है. सो देन उसके बाद में मैंने एडमिशन लिया, एंड दैट टाइम माय फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ माय फैमिली वाज नॉट गुड, so that is why I had an option ki you should apply in a college that have a very minimum fee, right? So I only applied in colleges that were having this kind of this government engineering colleges, right? So I only kept there. We have here in Gujarat, we have to fill the form and we have to make a list, right, according to our preferences. And according to your marks they would assign you a college. So उस लिस्ट में मैंने प्राइवेट कॉलेज एक भी नहीं रखी थी, मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस रखी थी सारी, और उसमें से एक गवर्नमेंट कॉलेज थी जीईसी मोडासा का, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मोडासा, तो वहां पे मेरा एडमिशन हो गया. सो उस टाइम पे मतलब इतना पता नहीं था कि क्या करना है, क्या कैसे करना है, और उसके बाद में 4 साल तो मस्ती में ही निकाल दिए पूरे के पूरे, ऑनेस्टली. मतलब लाइक कुछ पढ़ी नहीं थी, मतलब कुछ फ्यूचर का कुछ नहीं पढ़ा था, बस मजे करने थे, ऐसा था. सो उसके बाद में लगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, राइट. एंड एक चीज थी कि लाइक आई वाज नॉट डम्ब नहीं था मैं, लेकिन वो बोलते ना डफर बाय चॉइस, वो वाला था पूरा. सो ऐसा था कि लाइक आई न्यू कि लाइक मैं करूंगा तो हो जाएगा, बट करना नहीं था ये चीज. एंड देयर इज वन थिंग दैट आई रियली हेटेड अबाउट द आईटी फील्ड, क्योंकि उसमें लाइक एक होता है ना, कॉलेज में भी एक सीन था कि लाइक जब भी आपके वो होते थे क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट सबमिशंस वगैरह होते थे, तो उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल प्रोजेक्ट सबमिशन का एक माइंडसेट बना दिया था लोगों ने कि हाँ प्रोजेक्ट सबमिशन मतलब कि वेबसाइट बनाओ और दो, वेबसाइट बनाओ और दो. तो एक प्रॉपरली पता ही नहीं था उस टाइम पे. तो आई एम टॉकिंग अबाउट 2017. टॉकिंग अबाउट 2007. तो उस टाइम पे मेरे को पता नहीं अहमदाबाद या इस साइड पे कहीं हो, बट हाँ मेरी कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी का कुछ ट्रेंड या ऐसा कुछ नहीं था, इतना हाइप नहीं था उस टाइम पे. सो बाकी किसी फील्ड के बारे में पता ही नहीं था, ना नेटवर्किंग के बारे में पता था. मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हाँ प्रोजेक्ट करना है तो मैं नेटवर्किंग पे भी कर सकता हूँ, या फिर मैं साइबर सिक्योरिटी, तो उस टाइम बिल्कुल ही नेटवर्किंग ही नहीं पता था, साइबर सिक्योरिटी कैसे पता रहेगा. ऐसा था कि कोडिंग तो नहीं ही करूंगा, ऐसा था. एंड व्हाट वाज योर ब्रांच? My branch was IT, BE in IT. Okay. How can a fresher get into this field? Like a lot of freshers do their BTech in or BCA, right? So if they want to get into the field of cybersecurity just straight away after doing their BTech, what is the process to guide them to कि ये चीजें पढ़ो और these are subjects which are important? Okay. So the first thing
So, when you a fresher would decide to make a career in cyber security, so the first thing that is important for him to know is what exact field does he want to, make career in, because cyber security itself is a set of, fields. Right. There is offensive security and then there is defensive security. Okay. तो अगर किसी को ऐसा हो कि मुझे अटैक करना है, हैकिंग करनी है, एथिकल हैकिंग करना है, ठीक है, अटैकिंग माइंडसेट है, तो वो बंदा क्या कर सकता है कि वो VAPT सीख सकता है, एथिकल हैकिंग रोल में जा सकता है, ठीक है। क्या सीख सकता और है? उसके लिए जॉब रोल VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द ऑफेंसिव सिक्योरिटी रोल। फिर रेड टीमिंग रोल होता है, ठीक है। तो दीज आर द रोल्स, ठीक है। अब उसके सिवा होता है डिफेंसिव सिक्योरिटी, उसमें होता है सॉक एनालिस्ट, जिसमें नेट मॉनिटरिंग करना होता है, मॉनिटरिंग काइंड ऑफ रोल होता है, इंसिडेंट रेस्पॉन्स, ये सब फील्ड होती है डिफेंसिव सिक्योरिटी। Could you please elaborate on what does this role mean exactly? मतलब काम क्या होता है, या फिर just explain for beginner कि what are these roles? Exactly. So फुटबॉल एग्जांपल है, ठीक है। फुटबॉल में वी हैव अटैकर्स, वी हैव डिफेंडर्स, करेक्ट, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी में भी सेम वे, वी हैव सम रोल्स दैट आर ऑफेंसिव। अटैकर क्या होता है? अटैकर का काम क्या होता है? गोल मारना, राइट। तो एक अटैक करना रोल होता है, ठीक है। और डिफेंडर क्या होता है कि जो डिफेंड करता है, कोई गोल ना मार दे हमें, ठीक है। सो इस तरह का ही रहता है कि अटैकिंग ऑफेंसिव सिक्योरिटी में कैसा रहता है कि अटैक करना होता है, उसका जो अप्रोच होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का अप्रोच होता है, वो ऑफेंसिव होता है। इसमें हमें अटैक करने होते हैं। लेट्स से एक वेबसाइट है, ठीक है, तो आप उस पे क्या करेंगे? एज एन हैकर, ठीक है, एज एन एथिकल हैकर यू वुड अटैक द वेबसाइट, ठीक है। आपको पता चलेंगे कि ये लूप होल्स है, बट द डिफरेंस कम्स व्हेन यू डोंट एक्सप्लॉइट दैट वल्नरेबिलिटी, ठीक है। एक बैड हैकर होता है, ठीक है, जिसको अपन ब्लैक हैट हैकर भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है? ब्लैक हैट हैकर क्या करता है? वेबसाइट पे वल्नरेबिलिटी निकालता है और उनको एक्सप्लॉइट करता है, उसका फायदा उठाता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम एथिकल हैकर, ठीक है, जो एथिकल हैकर होता है वो क्या करता है? वल्नरेबिलिटीज को निकालता है और उनको रिपोर्ट करता है कि दीज आर द वल्नरेबिलिटीज, फिक्स देम बिफोर अ ब्लैक हैट हैकर एक्सप्लॉइट्स देम। तो ये होता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अप्रोच इस तरह के होते हैं। और डिफेंसिव सिक्योरिटी में क्या होता है कि यू हैव टू मॉनिटर द नेटवर्क, यू हैव टू एनालाइज द लॉग कि लोग क्या क्या भेज रहे हैं, उनको एनालाइज करो, अटैक के पैटर्न को एनालाइज करना रहता है। सो इस तरह के रोल होते हैं कि आपका अप्रोच ऑफेंसिव नहीं होता, यू हैव टू इन्वेस्टिगेशन टाइप हो। तो मैं सिंपल वर्ड में बता दूं कि जिसको ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पसंद है वो अटैकिंग रोल में जा सकता है, जिसको इन्वेस्टिगेशन टाइप ऑफ रोल पसंद है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना या इस तरह का, तो वो डिफेंसिव रोल्स में जा सकता है। तो दिस आर, और उसके सिवा भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे डिजिटल फॉरेंसिक्स होता है, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी होता है, राइट। सो या दिस काइंड ऑफ रोल्स आर देयर। ओके, एंड हाउ कैन वन प्रिपेयर फॉर द सेम? लाइक अगर किसी को अटैकर में जाना है या फिर डिफेंडर में जाना है, इन जनरल, लाइक हाउ कैन अ फ्रेशर प्रिपेयर फॉर वन सेल्फ? कि अगर इसका द वन इज थिंकिंग कि आई वांट टू गो इनटू साइबर सिक्योरिटी फील्ड, what are the basic things that he needs to know, or what are the things and subjects he need to focus on basically? ओके, सो सबसे पहले तो नेटवर्किंग अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब इतना टॉप लेवल नहीं होना चाहिए। हमें राउटर को कॉन्फ़िगर नहीं करना है, ना ही हमें स्विच कॉन्फ़िगर करना है, हमें कमांड्स याद नहीं करनी, बट हमें पता होना चाहिए कि कैसे वर्क कर रहा है राउटर, कैसे वर्क कर रहा है, और नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, ठीक है, पोर्ट्स कौन, OSI मॉडल पता होना चाहिए, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। वी डोंट हैव टू कॉन्फ़िगर एनीथिंग, राइट। तो नेटवर्किंग एक अच्छा होना चाहिए। यू शुड नो दी OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, ठीक है, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और उसके सिवा अ लिटिल बिट ऑफ फ्रंट एंड, ठीक है, बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको इतनी ज्यादा अच्छे से आती हो या ना आती हो, डजंट मैटर, ठीक है, बट आपको फ्रंट एंड एटलीस्ट थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ओके, फ्रंट एंड आपको समझ में आना चाहिए, इवन इफ यू डोंट नो कि एंटायर पूरा कोडिंग कैसे करना है आपको, बट आप स्टिल अगर जस्ट इतना समझ सकते हो, कोड को समझ सकते हो, ठीक है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, तो भी इट्स फाइन। बट या देयर इज वन थिंग कि जिसको अगर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आती है तो दैट पर्सन विल हैव एन अपर हैंड, ठीक है, बाकी के कंपेयर में, बिकॉज क्योंकि कुछ चीजें होती है जो कुछ ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे जो लाइक जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती। हाँ, राइट, बिकॉज इन जनरल देखा जाए तो हम उसी चीज को, उसी के अंदर थ्रेड्स ढूंढ रहे हैं या फिर उसी को ही सिक्योर और बना रहे हैं। सो अगर पर्सन या फिर पीपल को दे आर नोइंग प्रोग्रामिंग या फिर डेवलप कैसे हुआ है यही पता है, तो उसमें थ्रेड्स निकालना आसान हो जाता है, राइट? इज इट दैट? या नॉट इन एवरी सिनेरियो, नॉट इन एवरी वल्नरेबिलिटी, ठीक है, बट कई बार कुछ चीज ऑटोमेट करने में हेल्पफुल हो जाता है ये चीज, ठीक है। जिसको फॉर एग्जांपल जिसको पाइथन प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है, तो वो अपने मुताबिक, उसको जो नीड है उसके मुताबिक वो तुरंत अपनी पाइथन स्क्रिप्ट बना सकता है,
और वो चीज जो दूसरे लोगों को करने में बहुत टाइम लग जाएगा वो एक तुरंत कर सकता है, राइट? सो देयर आर मेनी एडवांटेजेस of someone who knows programming and who is working on the VAPT. Okay, and one more thing, Vishal, I wanted to know that you know, what does a day look like when you say that you are a security consultant? आप क्या क्या काम करते हो इन जनरल, या फिर कोई भी जो भी सिक्योरिटी के फील्ड में होगा, जैसे सिक्योरिटी कंसल्टेंट के फील्ड में होगा, what does the work look like? So I mean, I like my work, right? I already told you earlier, right, that मुझे कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? तो whenever I think about job, I feel like कि मैं सुबह बैठूं और शाम को मैं उठूं तो मैं बोर ना हूं, ऐसा ना हो मेरे को कि बीच में कि भाई 3 बजे ऐसा ना हो कि यार कब बंद करूं और कब मैं कर जाऊं। जॉब ना लगे, एंटरटेनमेंट, हाँ एंटरटेनमेंट दिस इज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड दिस सीरीज आल्सो, कि लोगों को कम से कम जॉब्स के बारे में पता हो ताकि वो चुन सके अपनी खुद की जॉब। दे आर नॉट फोर्स्ड कि आप ये काम करो, राइट? एग्जैक्टली एंड समटाइम्स मेरे को ऐसा फील होता था कि मैं बग बाउंटी करूं। कल जैसे कल सैटरडे था, संडे था, तो मैं बहुत बोर हो रहा था, कल भी बहुत बोर हो रहा था। मैं सोचा चलो थोड़ी बग बाउंटी करता हूँ, थोड़ी देर बैठा, फिर मन नहीं किया। उसके बाद में आज थोड़ी देर बैठा, फिर वापस मन नहीं किया। फिर अभी से ऐसा हो रहा है कि यार काश सैटरडे संडे ना होता, कुछ ऑफिस का काम करने का। काम वही सेम ही होता है, मैं बग बाउंटी में भी वही चीज करता हूँ, बट ऑफिस में भी सेम ही चीज करता हूँ। लेकिन एक वो कंसल्टिंग होती है ना, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होता है कि वेयर यू वर्क फॉर अ क्लाइंट, वो आपको अपनी एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए देता है, आप वहां पे टेस्ट करते हैं। फिर देयर इज एंटायर प्रोसेस ऑफ कंसल्टिंग, इट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बग बाउंटी, राइट? सो या इट इज एंटरटेनमेंट फॉर मी, एंड ऐसा ही होना चाहिए कि हर कोई जॉब हमेशा। वर्क यू डू ओवर देयर, मतलब you are getting an application, you test that application and then tell them कि ये threats हैं, और what exactly does it happen? Exactly, that's what I do. I test the application, I run my test cases. जैसे कि लॉगिन पैनल है, लॉगिन पैनल पे आपने ये चीजें लगाई है, ये चीजें नहीं लगाई है, ये इस तरह की मिसकॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? तो उससे एक अटैकर को क्या एडवांटेज हो सकता है, ठीक है? मैं वो अटैक परफॉर्म करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये आप चीजें हैं, ये चीजें मिसिंग है, या ये चीजें हैं, इनको मिसकॉन्फ़िगर करके आपने लगाया, राइट? तो इससे ये चीजें हो सकती है। आई विल शो देम द POC कि देखो ये था, इससे ये कर पाया मैं, राइट? So okay, so you better fix this, and I will tell them कि how to fix this. अच्छा, so ऐसा ही सेम चीज होती है बाकी चीजों के, जैसे लॉगिन पैनल का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है? बाकी ऐसी सारी एप्लीकेशन भी होती है जहाँ पे पेमेंट वगैरह करने रहते हैं, ठीक है? तो I run my test cases over there as well. I try to manipulate the price of items. I try to bypass restrictions of payment, right? And this kind of so many test cases are there. I perform those attacks and I tell them, yeah, this is the issue, fix this. Okay, so Vishal, as you told that there are two types of jobs here in cybersecurity. One is that of an attacker and one is that of a defender. So which one did you choose and how did you get started in that field? मतलब जैसे आपने बताया कि नेटवर्किंग और TCP/IP प्रोटोकॉल, सारी चीजों के बारे में सबको पता होना चाहिए जो कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहता है, राइट? बट उसके आगे क्या, उसके आगे कैसे पढ़ना है, या फिर how can one get started in, अगर उसने चूज कर लिया कि उसको अटैकर बनना है या डिफेंडर बनना है? So, इसका मैं आंसर दूंगा। मैंने खुद ऐसा डिफेंसिव सिक्योरिटी एनालिस्ट मैंने करियर स्टार्ट किया था काफी टाइम तक। फिर मेरा एक ऐसा जॉब रोल आ गया जहाँ पे मैं दोनों चीजें देखने लग गया। Okay, great. उसमें लाइक फिर बग बाउंटी भी मैं साइड में कर ही रहा था, तो मेरे को वो कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं लगता था। लाइक मेरे को ऐसा था कि मैं दोनों चीजें सेम टाइम पे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने डिफेंसिव एनालिस्ट था मैं प्रोफेशनली, बट मैं साइड में बग बाउंटी भी कर रहा था, PT भी कर देता था कभी कभी, ठीक है? तो ये सब चीजें कर रहा था। तो उसमें लाइक ऐसा हुआ कि मैंने एक दो वल्नरेबिलिटीज से चालू किया, ठीक है? और मेरे को लगता था ये वाली वल्नरेबिलिटीज बहुत इजी है, ठीक है, और बाकी सब बहुत डिफिकल्ट है। और वो वल्नरेबिलिटी में मैंने बहुत अच्छा कर लिया था अपना नॉलेज। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी थी, क्रॉस साइट। आप कैसे पढ़ते थे? मतलब आई वांट टू नो कि आपने एक डिफेंडर वाला चूज किया, फिर आपने कैसे पढ़ना शुरू किया? कोर्स लिया या फिर कैसे किया, या कैसे मैंने जो बेस्ट वे आप बता सकते हो? मैंने क्या किया, मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे एक सिंगल वल्नरेबिलिटी के, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के, ठीक है? और मैंने वो सीख लिया, बहुत अच्छे से सीख लिया। उसके बाद में मुझे क्या लगता था कि यार यही बहुत इजी है, बाकी सब बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं सिर्फ वही ढूंढता था और कुछ नहीं ढूंढता था, क्योंकि मेरे को बाकी चीजें, ऐसा ही मेरा माइंडसेट हो गया था कि बाकी चीजें बहुत डिफिकल्ट। उसके बाद में मैंने बाकी चीजें भी सीखना चालू किया ना, तो मेरे को लगा कि यार ये चीजें तो इससे भी ज्यादा इजी, राइट? तो वो चीजें इस तरह से मतलब हो गया था कि लाइक इंटरेस्ट आता गया और मैं सीखता गया। मेरे को खुद भी पता नहीं चला कि मैं कब
सीख गया इतनी सारी वल्नरेबिलिटी। राइट। बट ऐसा था कि ऐसा कोई प्रॉपर वो नहीं था, मैं कभी किसी के ब्लॉग भी पढ़ लेता था HackerOne पे। यू कैन सर्च फॉर रिपोर्ट्स ऑन HackerOne, दैट इज द बेस्ट रिसोर्स। यू कैन जस्ट सिंपली गो ऑन गूगल एंड राइट site:hackerone.com and then in text and then space the name of the vulnerability. Let's say you want to learn XSS, then site:hackerone.com in text XSS. Okay. Right. And if you want to learn about IDOR vulnerability, you can replace the XSS with IDOR. You can get all those reports. वहाँ पे videos भी होंगे, लोगों ने report किए हैं. What skills do we actually recruiters look for while they're trying to hire a person for for cybersecurity roles? Like level card, all these vulnerabilities are you judged on, or there's something else? Communication as one of the major skills, but apart from that, what else? कम्युनिकेशन आई मीन VAPT रोल के लिए ठीक है, मतलब बाकी जो ठीक है, हाँ उसको भी देखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी रोल में होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग दैट इज रिक्रूटर जो देखते हैं ज्यादातर साइबर सिक्योरिटी में, सर्टिफिकेशन। राइट, ऑनेस्टली मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है अभी, बट देखते हैं ये चीज, ठीक है। बट आपके पास में अगर कुछ और हो, या फिर आपकी जैसे कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल, दैट इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि रिक्रूटर जो लोग देखते हैं, आप how you use LinkedIn on a daily basis, right? How often you share post, right. how often you are engaging with people on LinkedIn, ठीक है, आपका सर्कल कैसा है, ठीक है, और आपकी LinkedIn प्रोफाइल कैसी है। तो these all things are there कि जो रिक्रूटर्स देखते हैं। और सर्टिफिकेशन, ठीक है, मेरा जो स्पेसिफिकली जो इंटरव्यू हुआ था E&Y में, वो इसलिए हुआ था क्योंकि मेरी बग बाउंटी का एक्सपीरियंस था, उसको देखते हुए हुआ था। Right. So you have been but if you talk about one question over here, Vishal, you have been telling a lot about bug bounties. कैसे एक bug bounty में हम अपना करियर या फिर कैसे शुरू कर सकते हैं? Is it similar to what freelancing is? और या क्या ये कैसे what would you explain to a fresher कि ये bug bounty भी एक चीज है from where you can win and earn? Yeah, bug bounty is something like it is used term in the cyber security field. जैसे कोई वेबसाइट है, ठीक है, आप वो वेबसाइट चाहती कि उसकी सारी वल्नरेबिलिटीज है, उसको कोई ब्लैक हैट हैकर उसको एक्सप्लॉइट ना करे। इंस्टेड ऑफ दैट जो व्हाइट हैट हैकर्स है, ठीक है, एथिकल हैकर्स है, वो उनको फाइंड करे और उनको रिपोर्ट करे, और उसके थ्रू वो वल्नरेबिलिटीज फिक्स हो जाए, ठीक है। सो उसके लिए क्या करते हैं, वो बग बाउंटी प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं, या तो अपने वेबसाइट पे एक पेज बना देते हैं, बग बाउंटी के सारे रूल्स लिख देते हैं और ईमेल मेंशन करते हैं, या फिर वो थर्ड पार्टी होस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल HackerOne पे, बगक्राउड पे, इन पे होस्ट करते हैं। तो वहां पे जाके आप वेबसाइट पे वल्नरेबिलिटी फाइंड करो और उनको रिपोर्ट करो। इफ दैट वल्नरेबिलिटी इज वैलिड, if that vulnerability is valid, and if it is not a duplicate, right? For example, you and me, we both report the same vulnerability, right? But you reported it first, then my submission would become duplicate, and I won't get any bounty for it. So आप रिपोर्ट कर देते हो, उसके बाद में वो एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है, एंड उस वेबसाइट का कोई बग बाउंटी प्रोग्राम है, तो दे वुड गिव यू एप्रिशिएशन इन फॉर्म ऑफ बाउंटी। ठीक है, तो मेरा ऐसे ही चालू हुआ था। मैंने इनिशियली बाउंटीज लाई थी, 3 डिजिट्स में आई थी, उसके बाद में 5 डिजिट USD में भी मेरी बाउंटी आई थी गिटहब में। ग्रेट एंड उसके बाद में कुछ 4 डिजिट्स में भी आई थी। तो लाइक इट डिपेंड्स ऑन दी वेबसाइट की किसका कितना बजट है। तो या एंड इवन इफ समटाइम्स यू फाइंड क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी ऑन अ वेबसाइट, बट उनका अगर इफ उनका बग बाउंटी प्रोग्राम है बट उनका बजट इतना नहीं है, तो दे वुड गिव $100 or $200 even for the critical vulnerability, right? और sometimes अगर आप एक मीडियम सीवियरिटी वल्नरेबिलिटी निकालते हो, ठीक है, किसी वेबसाइट पे, तो आप अगर उसका बजट है, एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंपनी। लाइक फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट थी, उसने क्रिप्टो करेंसी में एक बंदे को बाउंटी दी थी $10,000 की फॉर अ मीडियम सीवियरिटी इशू, फॉर अ लो सीवियरिटी इशू, आई गेस medium or low it was like, but 10,000 was a very what is the hiring process of cyber security consultants? Matlab, as a fresher, if you get hired, what is the first round, like technical round is there, or directly interviews, or again there is some kind of kind of competition that is being hosted wherein you need to find out some vulnerabilities, or what is the process exactly in general? In E&Y, I didn't, competition or, this kind of, labs right. or but practical round, right? What is the kind of scenario here in cybersecurity? How do people get selected? They
schedule an interview, right? They Okay. schedule an interview with some. In the first round is mostly taken by the senior consultants, Okay. and if you get selected in it, then there would be a manager round, Okay. and there can be one or two more rounds, right? So it depends from person Company to person. to Like company. for example, when I applied in EY, I had one round of interview, but I talked with other people who also got hired in the end, Right. and they were having 3 rounds of some of them were having 2 or like that, right? Okay. So it So depends on basically the nature. Right. It's basically on the level that you are into, and also on how you have been selected. मतलब किसी को call आ गया and Yeah. interview. And maybe it may depend on the urgency of the project, right? For example, if the hiring needs to be done urgently, right, then they may just take one round of interview. Got it. So it may be like that. Okay, so Vishal, I have another question for you. So you've been working as a security consultant, right? I want to know what kind of pros or expectation versus reality did you felt while being into this role? कि you felt कुछ हो सकता है या फिर ऐसा होता होगा इस job role में, but when you entered into the role, you find out a little bit different. Anything of that sort, or any incident you want to share? हाँ, मैं मतलब एक चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसमें, मतलब लाइक ऐड कर सकता हूँ इस चीज में कि देयर इज वन थिंग. मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि साइबर का ही ऐसा प्रोज एंड कॉन्स या ऐसा रहता है, बट मैं पहले ऐसा सोचता था कि आई वुड जॉइन अ जॉब एंड देन आई वुड गेट टू लर्न थिंग्स फ्रॉम अदर्स, राइट? ठीक है, मतलब हाँ, ये चीज है कि बाकियों से भी सीखने मिलता है बहुत कुछ, राइट? बट उसके बाद से जब से मैंने ज्वाइन किया तब से एक फील होता है कि नॉट जस्ट E&Y, बाकी कोई भी कंपनी, बट एक चीज होती है कि सेल्फ लर्निंग होती है ना, वही हमेशा करने को रहती है, राइट? यू नेवर गेट ऐसा कभी आप बिग 4 में आप स्पेसिफिकली जब वर्क कर रहे हो तो ऐसा नहीं रहेगा कि यू वुड पीपल विल सिट विथ यू एंड दे वुड टीच यू, राइट? वहां पे सब कुछ हेक्टिक होता है, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी डेडलाइंस होती है, राइट? व्हेनेवर यू सीक फॉर हेल्प, वो ऑब्वियसली आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, आपको डाउट्स क्लियर करेंगे, जो भी है, राइट? बट द मेन थिंग इज कि कोई भी IT रिलेटेड फील्ड हो, उसमें आपको सीखना तो आपको खुद ही पड़ता है, करेक्ट, ठीक है? तो या एंड वन मोर इसको प्रो एंड कौन की कैटेगरी में डाले तो आई डोंट थिंक इट वुड बी गुड, बट या एक चीज और है कि ये ऐसी फील्ड है ना जिसमें डेली अपडेटेड रहना पड़ता है. True. कि आपको पता होना चाहिए, आपको बिकॉज टेक्नोलॉजीज चेंजेस, ओके, टेक्नोलॉजीज चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उस पे अटैक के जो पैटर्न्स होंगे वो भी चेंज होंगे, डिफेंस के पैटर्न्स भी होंगे, वो भी चेंज होते रहेंगे. तो ये चीज होती है कि आपको डेली अपडेटेड रहना पड़ता है, आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में रोज रोज पढ़ना पड़ता है, एक हैबिट डालनी पड़ती है कि हाँ, मैं ये चीज है तो इसके बारे में आप तुरंत गूगल करो. तो कई बार ऐसा होता है कि मैं चाय की टपरी पे भी बैठा होता हूँ, तब भी जाके मैं CV/ID सर्च करता हूँ, ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, हैकर की रिपोर्ट पढ़ लेता हूँ. तो एक वो हैबिट होती है, उसमें कई बार आपको ऐसा लगता है हैबिट बन जाती है और आपको उसमें मजा आने लगता है, तो इट डजंट फील लाइक कि आप मतलब वो क्या कर रहे हो, आपको कुछ प्रोफेशनली कुछ पढ़ रहे हो या ऐसा कुछ. इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. आपको ऐसा लगता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, राइट? आपकी जो फेवरेट नॉवेल पढ़ रहे हो या ऐसा, तो इट रिप्लेसेस द एंटरटेनमेंट फैक्टर फ्रॉम योर लाइफ. जैसे कि मेरे को पहले नॉवेल पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, अब मैं हैकर की रिपोर्ट्स वगैरह ये सब पढ़ने में मेरे को मजा आने लग जाता है. सो ऐसा हो जाता है. इसमें प्रोज एंड कॉन्स वैसे स्पेसिफिकली तो कुछ नहीं है, बट हाँ, ये है कि आपको डेली अपडेटेड रहना पड़ता है. प्रोज ये है कि इसमें मैंने बोला बग बाउंटी इज द बिगेस्ट प्रो इन दिस लिस्ट. उसके बाद में इसमें ऐसा इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप कम टाइम इन्वेस्ट करके भी यू कैन अर्न मोर, राइट? आपका जॉब है, इट इज नॉट लाइक फ्रीलांसिंग कि आपको वेबसाइट बनानी है इतने दिन. आप अगर आप 5-10 मिनट बैठ रहे हो एंड इफ यू हैव द कैपेबिलिटी टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज इन 5-10 मिनट्स, ठीक है, खोलो लैपटॉप आधे घंटे के लिए, वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट कर दो, बंद कर दो, एंजॉय करो. तो ऐसा होता है. तो इसमें दिस इज द एडवांटेज. एंड या वन मोर थिंग कि यू हैव टू फॉलो पीपल, राइट? जैसे कि कुछ लोग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो स्पेसिफिकली फॉर फाइंड फॉर लर्निंग फ्रॉम देम. फॉर एग्जांपल देयर इज अ गाय ओरवा अत्यत. तो उसका रिकॉन बहुत अच्छा है, रिकॉन स्किल, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, रिकॉन लीकेज के इशू, इंफॉर्मेशन लीकेज वगैरह के इश्यूज रहते हैं, ठीक है, तो उसकी रिकॉन स्किल बहुत अच्छी है, आप उसको फॉलो कर सकते हो. एंड देयर इज अ गाय हु इज माय फ्रेंड अर्थ बाजपेयी. तो उसकी प्रिविलेज एस्केलेशन वल्नरेबिलिटी उसकी बहुत ऑसम. So there are, when you get inside this circle, cyber security community, people कि हाँ ये लोग हैं, इनके ब्लॉग्स में पढ़ूंगा, इनके वीडियोस में देखूंगा, इनकी प्रोफाइल पे मैं जाऊंगा, जो मेरे को ये चीज के बारे में डाउट है. तो मेन लर्निंग इज दैट ब्लॉग्स, और ये सब जो रहते हैं ब्लॉग्स पढ़ो लोगों को. One thing that I've seen
One thing I've seen in the field, not just in cybersecurity, but in general in the IT field, is that you need to be keep yourself updated. Otherwise, you left behind. And one of the most important things that you've told is a lot of people think कि हम company join करेंगे तो हम दूसरे लोगों को देख के सीख जाएंगे अपने आप. It's not just that. बहुत अच्छी point you have said कि self learning होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे. तभी आपके पास doubts होंगे. That doubts can be cleared by the people that in your organization, obviously, right? हाँ. So that like ऐसा ही होता है कि ये ऐसा होता है कि सेल्फ लर्निंग है ना. एक तो चीज होती है कि या तो किसी चीज में इतना इंटरेस्ट डेवलप कर लो कि आप खुद ही पता ही ना चले लर्निंग हो ही रही है, पता ही नहीं चलता. या तो बहुत ज्यादा मेहनत करना चालू कर दो. दो ऑप्शन है सेल्फ लर्निंग के. या तो एक चीज में इतना डेवलप कर लो कि वो आपके पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए, वो आपको मेहनत नहीं लगे, वो लगे ये तो रूटीन है मेरा, ऐसा लगे. मजा आने तो फिर आप हाँ राइट एग्जैक्टली. तो ऐसा रहता है. So any suggestions you would give to, since you have done BTech, then you have done your master's in cybersecurity, it must be a very long journey up till now, and you've been working now as well. What kind of suggestions you would give to the people who are just an aspirant of cybersecurity right now and just willing to get into this field? कुछ उनके लिए कुछ टिप्स आप बताना चाहोगे कि ये दिमाग में रखकर चलना या फिर ऐसे अप्रोच करना चीजों को and all of that? Anything you want to say? First thing that I would suggest is to do some research about the job role you want to get inside. ठीक है. जिस जॉब रोल के अंदर आप घुसना चाहते हो उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करो. फॉर एग्जांपल जैसे एथिकल हैकिंग, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, तो उसके बारे में जॉब रोल्स कौन कौन से होते हैं उनको सर्च करो और उनके बारे में पढ़ो क्या क्या डेली रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. ठीक है. और उसके साइड में डिफेंसिव रोल्स होते हैं उनको भी सर्च करो. फिर डिसाइड करो कि कौन सा ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है. ठीक है. कौन सा ऐसा जॉब रोल है जो आप सुबह के 9 से लेकर शाम के 6 तक आप कर पाओगे. ठीक है. ये चीज आप पहली ये चीज कर सकते हो. दूसरी चीज ये कर सकते हो कि लिंक्डइन पे सर्कल बनाओ बहुत ज्यादा. आप आजकल तो मतलब स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं वो फर्स्ट ईयर से ही मतलब लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है. तो ऐसे लोगों को फॉलो करो. तो एक चीज होती है कि ऐसे लोगों को फॉलो करना जो मतलब ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी में है, अगर जिनका ऑलरेडी नाम है. ठीक है. सो ऐसी मतलब प्रोफेशनल लोगों को फॉलो करके आपको अगर उनसे सीखोगे नहीं ना तो एटलीस्ट आपका माइंडसेट है ना वो वैसा हो जाएगा. राइट कि हाँ ये लोग हैं और इनके बीच में खड़े रह के भी आपके अंदर से होगा कि नहीं यार करना है, मेहनत करनी है. राइट. सो एक चीज वो चीज कर सकते हैं. और दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि बग बाउंटी है वो स्टार्ट कर दो. ठीक है. अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हो एग्जैक्टली उसमें एक चीज होती है कि यू डोंट हैव टू डू दैट फॉर फ्री. एक हमेशा एक चीज रहती है कि यार लोगों को कम्पीट करके फिर रिवॉर्ड लेना. राइट. और वो भी US डॉलर्स में. ठीक है. और तो एक वो लालच आ जाता है. लालच अच्छी चीज है मतलब अगर सही बी हंग्री फॉर व्हाट यू वांट टू बिकम. राइट. यस. तो वो रह जाता है कि आप वो चीज फ्री में भी नहीं कर रहे हो. राइट. यू आर ट्राइंग टू अर्न सम रिवॉर्ड. राइट. तो उसके उस And if you're not even चलते आपकी and if you're not even able to win, you're actually learning and upgrading for the next competition or next bug bounty or whatever, even in the field that you're going into. एग्जैक्टली. आप वो करते हैं ना, आप उस बग बाउंटी की फील्ड में घुसते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उस रास्ते में अपने सारे स्किल सेट आपने स्ट्रॉन्ग कर दिए. तो ये दिस इज वन थिंग आई वुड रिकमेंड टू पीपल. एंड देयर आर सम पीपल हु डोंट लाइक डूइंग बग बाउंटी. ठीक है. वो डिफेंसिव रोल उनको ज्यादा, उनको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना ये सब थोड़ा ज्यादा मजा आता है. ठीक है. तो वो भी अच्छा है. इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल इंटरेस्ट कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं. बाकी एज सिक्योरिटी कंसल्टेंट what excites me the most is offensive security, of course. Right. Thank you so much, Vishal. I think अभी मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस या मुझे काफी ज्यादा इंसाइट्स मिले अबाउट साइबर सिक्योरिटी की. 2 तरीके के रोल्स होते हैं, देन उन रोल्स में काफी तरीके के रोल्स होते हैं. आप किस पर्टिकुलर फील्ड में घुसना चाहते हो. इनिशियली कुछ नेटवर्किंग के कांसेप्ट्स आने चाहिए सो दैट योर बेसिक्स आर स्ट्रांग एंड देन आप YouTube के वीडियोस या फिर कोर्सेज से पढ़ के यू कैन गेट इनटू दैट पर्टिकुलर फील्ड. वन नीड्स एग्जैक्टली. मैंने तो अभी मेन फील्ड्स ही बताई थी और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं. इट्स जस्ट अ बेसिक इनसाइट दैट आई गिव यू कि एक किस तरह का होता है. उसमें भी बहुत सारी और चीजें भी होती है. कुछ ऐसे रोल्स भी होते हैं जिसमें दोनों चीजें करनी पड़ती है. अच्छा. एंड व्हाट्स वैसे भी बहुत सारी चीजें मतलब कुछ ऐसे रोल्स भी होते हैं जिसमें आपको
मैंने बोला ना कि आपको हैकिंग भी करनी रहती है, वीएपीटी भी करना रहता है, आपको ऑफेंसिव सिक्योरिटी का भी नॉलेज होना चाहिए, एट द सेम टाइम आपको डिफेंसिव सिक्योरिटी का भी नॉलेज होना चाहिए, राइट। सो ऐसे भी कई बार जॉब रोल दे देते हैं बंदे को, ठीक है, कि आप ये सब चीजें करोगे, तो इट डिपेंड्स ऑन कि पर्सन को कितना आता है, राइट राइट। जैसे मेरा SOC एनालिस्ट था बट मेरे को वीएपीटी आता था, तो मैं कई बार उस चीज में भी कर देता था काम, सो उस तरह का था। तो देन आई डिसाइडेड कि हाँ भाई मेरे को डिफेंस नहीं करना, मेरे को अटैक ही करना, देन आई become a full-time, offensive security consultant. Got it. Thank you so much, Vishal. I think काफी लोगों को इस चीज से इंस्पिरेशन एंड एक किक स्टार्ट मिल गया होगा कि कैसे करना है, क्या क्या रोल्स होते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, कि कैसे इंटर कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड्स में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ अस। Thank you so much, Mansi, for inviting me. Thank you so much.